दिस इज क्लास 12th। और क्लास 12th की अगर इंग्लिश की बात करें तो इसके अंदर प्रोज, पोइट्री, नॉवल वगैरह जो भी हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन ग्रामर, सी सेक्शन ऐसे एप्लीकेशन राइटिंग एंड डी सेक्शन। और आज हम इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो डी सेक्शन से शुरू करेंगे। और डी सेक्शन के अंदर हमारे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के साथ कंजंक्शंस, और इसके साथ में पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग के बाद लेटर राइटिंग है। पैराग्राफ, देन लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग के बाद नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग के साथ मुझे लगता है डायरी एंट्री भी है। डायलॉग राइटिंग है। एंड देन इसके साथ में नोटिस है, मैसेज है। सो हम शुरू करेंगे नोटिस से एंड देन हम आएंगे पैराग्राफ, लेटर, नोट एंड डायलॉग राइटर। हम आज पढ़ेंगे नोटिस और एक पढ़ेंगे हम मैसेज। सो जहां तक नोटिस और मैसेज का सवाल है, सबसे पहले हम नोटिस के ऊपर आएंगे कि नोटिस है क्या, किस चीज को हम नोटिस बोलते हैं, नोटिस है क्या। नोटिस इज अ पब्लिकली notice is a publicly displayed information. What is notice? Notice is publicly displayed information. किसके बारे में? Of something, किसी चीज के बारे में which is about to happen. Publicly displayed information of something about to happen या फिर जो हो चुकी होगी। या फिर वो हो चुकी होगी। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, इट इज एन इंफॉर्मेशन which is meant for others to know, जो दूसरों के लिए बनाई गई ये चीज, others to सो क्या है नोटिस? एक पब्लिकली डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन जिसको हमने किसी चीज पे छापना है, किसी चीज पे डिस्प्ले करना है, जाहिर करना है। अब समथिंग अबाउट टू हैपन और दैट हैज हैपेंड व्हिच ऑलमोस्ट हैज कंप्लीटेड और व्हिच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन द नियर फ्यूचर। इट इज एन इंफॉर्मेशन व्हिच इज मेंट फॉर अदर्स, नॉट फॉर ओन पर्पस, बट इट इज notice is for others, to let other people know. So this was the definition of notice. Now we need to remember some points while writing notice. जब भी हम कोई नोटिस लिख रहे हैं हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है? Always remember अगर हम नोटिस लिख रहे हैं, if we are writing a notice, then we have to remember these points. What are these points? Number 1, whenever we are starting writing a notice, the language of a notice should be impersonal.
number one point is the language should be impersonal. That means it should be written in third person. It should be written in third person. So it is the first point which we people should remember while writing a notice. Number second point, first and second person pronouns, like first and second person pronouns, first and second person pronouns like I and you. These two personal pronouns, that is I and you, should never be used. These should never be used. First and second person pronouns like I and you should never be used. This is the second point which we have to remember while writing a notice. And number third is, whenever we are writing a notice, the notice should be in a square box. It should be in a square box. Whenever we are writing a notice, for example, notice लिखा और notice के बाहर हमने एक square box बनाना है. This is the third point. Next. Fourth point is, it must contain all the essential information. जितना कुछ हम बोलना चाहते हैं, जितना कुछ हम लोगों के सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो इस शॉर्ट प्रिसाइज मैसेज के अंदर इट मस्ट कंटेन ऑल एसेंशियल, उसके अंदर सारी चीजें वो आ जानी चाहिए. This was the fourth point. And then fifth point is, the purpose of the notice should be clear. Purpose of notice should be clear. किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, किस इशू के ऊपर नोटिस लिखा जा रहा है, that should be made very much clear. Then sixth one is, date of writing the notice should be mentioned. Most important thing, date of writing the notice should be mentioned. Whenever we are writing a notice, we have to display the date. Then it should carry all the necessary information. It should carry all the necessary information. And then eighth point is, these are the points which we have to remember while writing a notice. There must be a proper signature and then designation. There should be a signature and the designation at the end of the notice. And last one, we should contain the word limit of the notice for at least 50 words. We don't have to exceed the word limit from 50 words, because whenever we are writing the notice and if the word limit exceeds, we have to put the notice in the square box, for example like this, and then we have to display all the information. Date should be mentioned. Date should be mentioned. Then it should contain information. Then on the last it should contain seal and signature, that means designation.
and then most important it should be in the square box. But whenever we are writing the notice, the word limit of notice should not exceed more than 50 words. और अगर ऐसा होता है कि आपकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, देन देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन दिस पर्टिकुलर नोटिस राइटिंग. सो समझ आया नोटिस राइटिंग क्या था. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल, you are the secretary of cultural club of your school. The school is celebrating its annual day on the 25th of February. Draft a notice to be put on the notice board of your school, informing the bag holders and house captains of a meeting you are going to be to take a decision on some important matters regarding the conduct of program. This notice should not exceed 50 words. अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नोटिस लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक नोटिस लिखना है जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें मेंशन करनी है. तो हम ऑब्वियसली पहले कैपिटल में लिखेंगे NOTICE, दैट मींस नोटिस. ठीक है. और नोटिस को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन. करो ना करो, अगर कर भी लो तो ठीक है, लेकिन नोटिस बोल्ड में होना चाहिए, क्लियर में होना चाहिए. नंबर 1 नोटिस. उसके बाद हेडिंग, जो भी स्कूल कंसर्न स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी इदारा है जो उस चीज को कंडक्ट करा रहा है वो. देन उसके बाद डेट हमने स्क्वायर बॉक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये सारा कुछ स्क्वायर बॉक्स के अंदर होना चाहिए. पहले नोटिस लिखा, देन कंसर्न जो भी स्कूल होगा, कॉलेज होगा या भी जो भी इदारा होगा जो कंडक्ट करा रहा है. देन एक्सट्रीम राइट पे हम लिखेंगे डेट. नंबर 1 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन करना जरूरी है. ठीक है. और इसको अगर जो मैंने लिखा इसको लिखो आप हेडिंग को, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट को प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है. देन डेट, और डेट के बाद जो हमारी हेडिंग होगी उसको एलाबोरेट करना है. और 2 चीजें हमने उसको मेंशन करनी है कि वो नोटिस किस डेट को लिखा जा रहा है और जो हम प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, द प्रोग्राम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, उस चीज का डेट मेंशन करना जरूरी है कि किस डेट को हम प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं. देन एक और चीज, हमारा और कौन कौन कोई चीफ गेस्ट होगा जो अटेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, उसका नाम. एंड देन लास्ट पे हमने क्या करना है, जो मैंने बोला था अभी, डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन लिखना है और डेजिग्नेशन के साथ में नेम भी लिखना है कि कौन ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है. एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वर्ड लिमिट जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से ज्यादा हमने नोटिस में नहीं होना चाहिए वर्ड लिमिट, क्योंकि अगर 50 वर्ड से ज्यादा हो गया तो आपका नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी वहां पे. सो दीस वर द पॉइंट्स व्हिच वी पीपल हैव टू राइट रिमेंबर व्हाइल राइटिंग अ नोटिस. अब हम एक काम करेंगे, एक नोटिस करते हैं. ये मैंने फॉर्मेट बताया आपको. ठीक है. अब हम एक काम करेंगे, एक नोटिस करते हैं हम, और नोटिस के बाद फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल नेम एक्स, उसका नाम एक्स है, वो क्लास 5th का स्टूडेंट है. इज द एन इंडिविजुअल नेम एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, और उसने अभी अभी अपना एनुअल एग्जामिनेशन खत्म किया है. 2 of his books are in fairly good condition and he wants to sell them at reduced price. He puts up a notice on the school notice board giving all the necessary details. Now we people have to put up a notice on the school notice on the notice board जिसके अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन देंगे. Number 1 information is that individual name is X and he is studying in 5th class. He is having 2 books of previous class. उसके पास एक्स इंडिविजुअल है, 5th क्लास का है, 4th क्लास की उसकी प्रीवियस क्लास दैट मींस 4th क्लास की 2 बुक्स उसके पास एक अच्छी कंडीशन में है एंड ही वांट्स टू सेल देम. नाउ वी पीपल हैव टू पुट अ नोटिस. नंबर 1 पहली चीज, वी हैव टू ड्रॉ द स्क्वायर बॉक्स एंड देन डेट. नाउ दी डेट, जो भी डेट होगी कंसर्न डेट उस दिन की डेट डाल दी.
देन कैपिटल में क्या मैंने अभी बोला, बोल्ड में लिखना है हमें नोटिस, ठीक है, कैपिटल। और उसके बाद नोटिस के बाद हेडिंग। अब हेडिंग क्या बनेगी, इस चीज की इस पर्टिकुलर नोटिस की हेडिंग, जिसमें एक इंडिविजुअल है और वो बुक्स बेच रहा है, सेकेंड हैंड बुक्स इन ब्रांड न्यू कंडीशन, हेडिंग। सेकेंड हैंड बुक्स इन ब्रांड न्यू कंडीशन, ठीक है, नोटिस की हेडिंग बन गई। देन उस पर्टिकुलर इदारे का नाम जो मैंने बोला, हेडिंग, स्कूल, जो भी जिस स्कूल का वो होगा, ये इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल किसी भी स्कूल का, लेट इट बी वाई, तो यहां पे हम लिखेंगे वाई स्कूल फलाना, ठीक है। नोटिस, डेट, हेडिंग, एंड देन अब हम शुरू करेंगे अपना नोटिस का मटेरियल। दैट शुड बी प्रिसाइज, दैट शुड बी करेक्ट, दैट शुड बी टू द पॉइंट, दैट शुड बी इंफॉर्मेटिव। अच्छा, हम लिखेंगे अब हेडिंग के नीचे 2 बुक्स है ना, कौन कौन सी बुक्स, कोई भी बुक्स, 2 बुक्स ए एंड बी, ठीक है। हम शुरू करेंगे, द अबव 2 बुक्स आर इन वेरी न्यू गुड कंडीशन एंड कैन बी हैड एट ओनली 50% और एट देयर प्रिंटेड प्राइस, दोज इंटरेस्टेड मे प्लीज कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल अब हम एक्स लिखा ना हमने, तो हम इसको शुरू करेंगे, the above 2 books of class 4 series are in brand new condition, ठीक है, कि वो एक अच्छी कंडीशन में है, एंड कैन बी हैड एट 50% ऑफ दियर रेट्स, ठीक है। दोज इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के बाद आप किसका, आप उसका नाम, इंडिविजुअल कौन है, इंडिविजुअल कौन है, एक्स, जिसका नाम जो ये किताबें बेच रहा है एक्स, अब वो क्लास किसका है, 5th, ठीक है, क्लास 5th, और लास्ट ईयर कौन सी क्लास में था, 4th में, ठीक है, लास्ट ईयर इन क्लास 4 को अंडरस्टूड है। और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर होगा उसको भी डिस्प्ले कर दो एंड क्लोज द नोटिस, बात खत्म। इसके अंदर ये इंफॉर्मेटिव भी आ गया, हेडिंग भी आ गई, एग्जामिनर क्या करेगा, नोटिस, अच्छा बोल्ड में, ठीक, डेट लेफ्ट साइड में, अच्छा, हेडिंग भी है, ठीक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इसकी वर्ड लिमिट देखें, इट इज नॉट अबाउ 50 वर्ड्स, एंड अगर 50 वर्ड्स से ज्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव मार्किंग, 50 से कम रहेगी तो हमारी मार्किंग पॉजिटिव में जाएगी, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे हम। सो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस, एक फॉर्मेट भी बताया, एक नोटिस भी किया हमने। नाउ अब हम कल करेंगे मैसेज, और मैसेज के बाद हम उसी में भी प्रोसीजर देखेंगे मैसेज का, मैसेज कैसे लिखते हैं, क्या है, किस प्रोसीजर का है, और उसके बाद थोड़े से नोटिस और थोड़े से मैसेजेस का मैं तुम्हें असाइनमेंट दूंगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड्स। थैंक यू।